welcome everyone. How are you? Hope everyone is doing fine. So, we are here to celebrate anniversary of Literary Community and Pious Literary Community, as you all know. And so, first of all, thank you so much for us. For thank you so much for to them for calling us as their host, and congratulations for their on their anniversary. So there are great people coming over here. Let's start with the participant list. Those who have given the name first will be called first with their introduction. So all the best, everyone. Good luck, everyone. We thank you so much, Neelam Prabha ma'am. You are here. I just saw your picture right now. Namaskar. Namaste. Namaskar, Thank you so much everybody. for coming and blessing Welcome, us. ma'am. Namaskar. Welcome, ma'am. Yes. Namaskar. Ms. Janvi, you can continue with the singing thing, Yeah. and then we will welcome warmly Neelam Prabha ma'am. Thank you. Thank you. It's okay. First participant is Janvi Singh. Ms. Janvi Singh is from Bhopal. Currently, she is doing BA in Psychology honors. Her hobbies are singing, dancing, poetry writing, sketching, and swimming. She is district swimmer as well. Congratulations, Janvi. And we see we have great personalities in our group. And she have performed in many open places and got many prizes. Recently only she has started writing poems. Namaskar. She is a clinical psychologist and she wanted to be clinical psychologist in the future. So we wish you a very good luck, Janvi, for your future endeavors. So today I'll be singing बोल दो ना जरा इतनी मोहब्बत करो ना मैं भूल न जाऊं कहीं वापस किनारे पे आना कहीं देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हक के या नहीं जरा दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है अकेली ख्वाबों में आया करूँ नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं मेरा तुम सहारा बनूं एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं थैंक यू Very Oh, it nicely was so sung, nice. Janvi. So beautifully sung. See, Janvi, you got a very first comment from Miss Neelam Prabha ma'am. She is so honorable person and she is commenting on you. It was wonderful, really wonderful I start. really loved the song, the way she sung it. It was nice Thank of you, you. ma'am. It's so nice of you. Means a lot to me. Thank you so much, Janvi, for keeping our words and singing for us. It was so melodious song actually, and you gave us such a lovely start. Thank you so much for being here and participating. So here is Achal Pradar sir as well. He is also our chief guest for today. Most welcome, sir. Thank you for coming and giving your precious comments to us. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Rekha Khichi ji. Rekha, ma'am. Please स्वागत welcome. हेलो है मैम हाँ जी नमस्ते जी जी स्वागत मैं है हिंदी रेखा जी थैंक यू मैम थैंक यू अच्छा, इनके इंट्रोडक्शन में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि इनका नाम रेखा खिच्ची है
ये मुंबई के उल्लासनगर में रहती है। ये गृहिणी है और इन्होंने लिखने की शुरुआत अपनी डायरी से की थी और इन्होंने काफी साजन संकलन में अपनी पहचान बनाई है और इन्होंने अपनी 3 पुस्तकें प्रकाशित की है और सोशल मीडिया पर भी ये अपने विचार सबसे साझा करती है, लिखती हैं। इनकी पहचान @a_magical_roar पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वेलकम मैम, स्टेज इज योर्स, प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैम। आप Most सभी को welcome. नमस्ते, मेरा नाम रेखा है। तो मैंने एक कविता लिखी है अभी, वो सदमा, एक टॉपिक है सदमा, मतलब महसूस किया है इसको, तो मैं उसके ऊपर आपको सुना। सदमा बहुत गहरा शब्द है ये सदमा, जिसने इसको माना है उसका नहीं जमाना है। मैंने देखा है ये मेरी आंखों के सामने, कैसे किसी अपने के खोने से धक्का गहरा लगता है। यूं लगता है मानो आंख पर मृत्यु का पहरा लगता है। कैसे बताऊं वो हाल, वो क्या मंजर था। ऐसे लग रहा था जैसे काल ने मारा खंजर था। माता पिता ने खोया बेटा और भाई बहन ने अपना छोटा भाई। न जाने कौन सी वो हवा मेरी आंखों के सामने आई। चारों तरफ बस आंसुओं का कोहराम था, चाहे समय दिन का हो चाहे वो लम्हा शाम था। पिता ने तो जैसे तैसे अपने आप को पत्थर बना दिया, क्योंकि उसको पीछे सबको संभालना था। लेकिन माँ उस लम्हे में खो गई और अपने बेटे के साथ ही उम्र भर के लिए खो गई। नहीं झेल पाई वो दर्द, नहीं झेल पाई उस दर्द को जो उस वक्त उसको मिला था। मुरझा गया वो नन्हा सा फूल जो उसके आंगन में खिला था। उसी के साथ चली गई वो और पीछे छोड़ गई सारा परिवार। वक्त ने किया एक साथ सभी पर गहरा वार। ये सदमा बहुत गहरा था, सब पर अपनी छाप छोड़ गया। हंसते खेलते परिवार को पल भर में ही तोड़ गया, पल भर में ही तोड़ गया। थैंक यू। बहुत खूब, Very बहुत touching अच्छा। poem. Very touching. थैंक यू मैम। Very moving. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम शब्द बहुत गहरे हैं और आपके शब्दों की गहराई को देख के पता चल रहा है कि आपने जीवन को बहुत करीब से बहुत जल्दी जी। सर ये यूं कहूँ तो मेरी खुद की कहानी जो बस कविता में आ गई। आपकी आंखों में झलक रहा है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था बट लिटरली दैट शोज। और ये प्लेटफॉर्म जो है हम सबको सही में मैंने जिंदा रखने के लिए बहुत काफी बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छे शब्द हैं आप। और Okay, let me first, I will introduce my two hosts. That is Amreen Fatima and Nazima. Nazima, I have written 2 or 3 lines, I would say. And Amreen, your introduction will be done by Ayush sir. No Get the issues. chance. I don't And need later I will issues. invite the guests also. No, you need it definitely, dear. So Nazima, the line is, नाजिमा की तो नज़म ही निराली होती है, रिव्यू देते टाइम हिंदी में स्टार्ट से राइटर्स को प्रभावित करती है। हिंदी में इनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही है और इसलिए तो ये सब राइटर्स की चहेती भी है। एंड आई वुड लाइक टू सिंग 2 लाइन्स फॉर नाजिमा, जो कि उसका फेवरेट सॉन्ग है। टुडे ओनली आई केम टू नो अबाउट हर फेवरेट सॉन्ग, कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे पहले यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। Thank you, everybody. So here Thank you is so Nazima and much, Fatima. Amarpreet. Thank you Welcoming so each and everybody. much. And for Achal, for that, he is, let me tell you, like personal relationship with him with me.
He is my classmate. He is, I'm grateful that I'm getting this opportunity to introduce my brother, I would say. Since B.Ed class now, he is my elder brother kind, and I am his younger sister, and we are having a bond of so many years. In between, we were not in touch with each other because of my ill health issues and other complications. But as we had started talking again, we were again in the same college days kind of a bond of a brother and sister. So he, like, I would say, like, that he is a great teacher by profession, but very presentable and versatile by his heart and character. He has worked for 20 years in many schools of 10 plus 2 level in commerce as a commerce teacher, and he is truly a faculty of to MBA and BBA students in many management institutions. And from the Honorable Cabinet Minister, Srimati, HRD Srimati Ji also, and 2 times he has been recipient of Dr. I am sorry that I am missing that. Achal Bhaiya, you tell me that award which you had received 2 times from Dr. It is actually Dr. Jamshed J. Irani Award. That award is being teachers who are working for the excellence of the school as an assessor. So I worked for the school as an assessor also on behalf of Tata Steel companies and Tata Group of companies. And that's why for 2 years that Dr. Jamshed J. Irani Award. And he's even a holder of 2nd rank in India in postgraduate trained teacher by Jharkhand SSC. So you see, you are having such a talented person, and even he can, and he will, during the passage of time with us, he will mesmerize you with his shairis too. Okay, so here he is, and let's proceed with the event of open mic. And y'all can introduce the participants now, Amreen and Nazima, according to the list you have provided with, and welcome all the participants whose name has not been taken or will be taken. And congratulations to the team of Pious Poetry and Hope Literary Community for celebrating their 18 months Pious Poetry and Hope Literary Community, their 4 months of birth, you can say. Thanks a lot. Thank you so much, Amarpreet ji, for introducing Sir Anshul Podar. I'm so glad that you are here, sir, to bless us, and to your presence enough is for us. Would you like to say some shairi and enlighten us? Just to start, give a kick start. Please, sir, we insist. 2 lines, 4 lines, as you wish. First of all, I'm very thankful to such a community. हम लोग अपने अंदर से खुद को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपना वेट को कम करने की, लेकिन अमरप्रीत के तारीफ से आज 5 किलो वेट और बढ़ गया है। So as to what unexpected किया था, she has researched a lot about me. Of course, वो solid days से मुझको जानती है। Healthy weight, that will be looking good at you. Thank you, ma'am. Thanks for the compliment. तो जो भी है, इस कम्युनिटी के बारे में जब मैंने अमरप्रीत से जाना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और अमरप्रीत और इस तरह की कम्युनिटी बिल्कुल बननी चाहिए। हम सब अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि सबसे तो बात कर पाते, लेकिन खुद से बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। जी, एग्जैक्टली। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप खुद को टटोल सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, खुद के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब जो है एक दूसरे की बात को सुनने के लिए बैठे हैं। बाकी तो घर से बाहर आप कदम रखिए तो शायद सब अपनी ही बात सुनाने बैठे रहते, यही है। और जैसा कि मैम ने रिक्वेस्ट किया कुछ के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ 4 लाइन्स अपने, ऐसे तो बहुत सारे मैंने काफी दिनों के बाद अपनी डायरी निकाली जो कॉलेज लाइफ में मैं मेंटेन करता था। बहुत सारी शायरियों से भरी हुई है, तो और मौके आएंगे। उसके पहले मैं कुछ
दो चार लाइन आपको सुना देता हूँ। दो शायरी में सुना था, एक छोटी वाली पहले सुनाता हूँ मैं आपको। एक बहुत पहले एक कॉलेज लाइफ के टाइम पे उस समय काफी इंसान एनर्जेटिक रहता है, बहुत खुश भी रहता है, आप देख सकते हो, काफी दोस्तों का साथ भी था। तो दैट मोमेंट आई हैव रिटन समथिंग। सुनो कि आज ये आंसू कुछ कहते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते ही ये तुमसे, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही रोते हैं। सुनो कि आज ये आंसू कुछ कहते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं ये तुमसे, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही रोते हैं। जब तुम पास नहीं होती हो मेरे, कुछ भी ये कह ना पाते हैं। जब तुम पास नहीं होती हो मेरे, कुछ भी ये कह ना पाते हैं। आंखों ही आंखों में कुछ देर सिमट कर फिर आंखों से बह जाते हैं। तो ये कॉलेज के टाइम पे लिखा था। और एक मैं अमरप्रीत ने काफी एक्चुअली बोला, रॉयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जब लोग बीएड कर रहे थे उस टाइम इसी टाइप का कुछ ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, और उस टाइम ही मैंने एक शायरी लिखी थी काफी लंबी, वो मैं आपको सुना। दैट इज द बेस्ट यू कैन से द पोएम ऑफ माय लाइफ। दिस इज अबाउट अ गर्ल एंड अ बॉय जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जो बॉय है उसके तरफ से वो अपनी फीलिंग्स को किस तरह से बता रहे हैं, कि वो किस तरह से उसको लेके फील करता है इन द इवनिंग, इन द नाइट एंड इन द, जब वो उसके साथ रहता है तब कैसा फील करता है। सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स मैंने कुछ लिखा है। जब शाम होती है तो दिल को तेरी तलाश होती है, जब शाम होती है तो दिल को तेरी तलाश होती है, फिर तेरी याद आती है और आंखें भर जाती है, और आंसुओं का पलकों पर सिमटना अभी और बाकी है, रुक रुक कर गालों पर ढलकना अभी और बाकी। जब रात होती है तो तन्हाई साथ होती है, फिर यादों के अंधेरों में गहरी सिसकती सांसें होती है। जब रात होती है तो तन्हाई साथ होती है, फिर यादों के अंधेरों में गहरी सिसकती सांसें होती है, और चांद का चमकना अभी और बाकी है, तारों का बिखरना अभी और बाकी। जब तुम पास होते हो तो ये पल थम जाते हैं, दिल के सारे अरमान तेरी नजरों में जम जाते हैं। जब तुम पास होते हो तो ये पल थम जाते हैं, दिल के सारे अरमान तेरी नजरों में जम जाते हैं, और लहरों का किनारों पर सिमटना अभी और बाकी, प्यार के समंदर का गहरा अभी और बाकी है, अभी और बाकी, अभी और बाकी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपकी दोनों राइटिंग में आंसू वर्ड कॉमन है, और शाम और तलाश और लहरों का सिमटना। अमेजिंग सर, क्या वर्ड्स का चयन है आपका, ग्रेट, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आप जैसे इतने दिग्गज और टैलेंटेड हमारे चीफ गेस्ट है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच सर। That is so nice of you, sir. इतना अच्छा लगा. It was so mesmerizing listening to you. मैं एक पल के लिए भूल ही गई कि I'm host and I have to carry on. Exactly. Thank you so much once again, and welcome to our community as a guest, and thank you so much, sir. Okay, let's move ahead quickly so that we are not making it long, too much long. Okay, so the next participant here is lucky to have you as a writer. So you're writer Lucky. You're most welcome. Please come and enlighten us. थैंक यू सो मच मैम। कि जब किसी का साथ छूट जाता है, जब किसी का साथ छूट जाता है, मानो इंसान उसी वक्त टूट जाता है। जब तक दादा दादी साथ थे तब तक दादाजी जवान थे, जब तक दादा दादी साथ थे तब तक दादाजी जवान थे। न जाने कैसे दादाजी एक ही रात में एकदम से बूढ़े हो गए। जब तक दादी थी तब सब ठीक था, जब दादी गुजरी तो दादाजी एकदम से एक ही रात में बूढ़े हो गए। जब दादी थी तो दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते, जब दादी गुजरी तो दादाजी एकदम से अकेले हो गए। कि दादाजी दादी के जाने के बाद मानो एकदम से टूट गए। कभी दादाजी घर पे नहीं रहे, कभी दादाजी घर पे नहीं रहे, कभी दादाजी कंधे पे चादर नहीं लिए, कभी दादाजी कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं सोए, कभी दादाजी मन ही मन नहीं रोए। मगर आज दादाजी बाहर जाना भूल,
दादाजी ने मुझसे कंबल मांगी, ओढ़कर कुर्सी पे बैठे, कुछ सोचते सोचते न जाने कब सो गए। मैंने दादाजी को कल तक दादी के साथ हंसते खेलते एकदम जवान सा देखा था, मगर दादी के जाने के बाद दादाजी एकदम से बूढ़े हो गए। दादाजी अब दादी की तस्वीर के सामने खड़े होकर बातें करते हैं, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देते हैं। दादाजी एकदम से अकेले हो गए। दादाजी एकदम से अकेले हो गए। Now this is the Beautiful. masterpiece. बहुत अच्छे। Beautiful, wonderful. That's such a lovely poem. It was so lovely to have you here. And this was wonderful piece, actually masterpiece. Such an Nice, emotional thing you have very said beautiful in few expression. words. Very beautiful expression. So that is so nice story actually. Very beautiful, beautiful story about Dada Dadi. What do you say, Nazim Appa? मैं कुछ समझाने लकी जी के सारे राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा ही बहुत ही टची होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, कभी माँ पे, कभी बहन पे, कभी एक ऐसी बच्ची, शायद आपने लास्ट टाइम सुनाई थी, कुछ डेथ हो गई, भाई और बहन रक्षाबंधन, कुछ इस टॉपिक पे, और आज दादा दादी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लकी जी के सारे राइटअप्स मैंने सुने हैं, ऑलमोस्ट बहुत टची होते हैं, एज ऑलवेज। आज का भी बहुत ही टची था। मैं मैम से पूछना चाहूंगी, हमारी गेस्ट मैम से, कि उनको इनका राइटअप कैसा लगा, परफॉर्मेंस वेरी कैसी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट मैन वुमेन रिलेशनशिप। चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हों, बल्कि जितने ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, लाइक ओल्ड वाइन इज मोर इंटॉक्सिकेटिंग, और जितना पुराना रिश्ता होता है उसमें उतना ही दम होता है। वो फिजिकल लेवल पे कम और स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे ज्यादा गहरा होता है। और उसका जो बिछुड़ना होता है वो बिल्कुल दूसरे को तोड़ के आधा करके चला जाता है। तो बहुत इस पीड़ा को अच्छी तरह से प्रकट किया है लकी ने। वेल डन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। आई वाज रियली वेटिंग फॉर द टर्न मैम, की बीच में मुझे बोलना थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा था, और थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं आपको तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आपके जैसे जनरेशंस की इस सोसाइटी को बहुत जरूरत है। इस सोसाइटी जिस तरह से देखते ना मेरी उंगली का उन्होंने कहना शुरू करता है कि मैच नहीं करती पे। आपके जैसे जनरेशन अगर हुनर इस सोसाइटी में Let's move to the next participant. Reena ji. Should we call upon Reena ji now? She is from long time waiting here. Are you ready, Reena ji? थैंक यू सो मच मैम। हम जैसे जो न्यू कमर्स है राइटर्स, उनको जो अलग अलग राइटिंग कम्युनिटीज है उनके लिए पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आसान हो गए हैं संगीत के सरगम भी, आसान हो गए हैं संगीत के सरगम भी, देखो हर शाख पर एक कोयल गा रही है। तो जो अलग अलग कम्युनिटीज है, राइटिंग कम्युनिटीज, वो जिस तरह से हम न्यू कमर्स को एनकरेज करते हैं, चांस देते हैं, तो हम सबको और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है और ज्यादा लिखने का हम सबको मन करता है। मेरी आज की कविता है आदमी। एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है कि हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि रियल हैप्पीनेस क्या है ये हमको पता ही नहीं। तो एक्चुअली कॉमन नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हमने अपनी लाइफस्टाइल वैसी बना ली है कि उसको हमने अंडररेटेड कर दिया। तो ये आई एम प्रेजेंटिंग। कितना कमबख्त हूँ, कितना कमबख्त हूँ, सांस भी नहीं लेता, ये भूल जाता हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ। कितना कमबख्त हूँ, सांस भी नहीं लेता, ये भूल जाता हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ। तरक्कियों के दौड़ में, तरक्कियों के दौड़ में मंजिलों को ही पीछे छोड़ आता हूँ। सही मंजिल हमारी खुशियां है, पर उनको पाने के लिए हम रियल हैप्पीनेस जो है उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो तरक्कियों की दौड़ में मंजिलों को ही पीछे छोड़ आता हूँ।
कितने ही दिन बीत गए अपने आप से मिले, कितने ही दिन बीत गए अपने आप से मिले, सूखे दरख्तों में खूबसूरत फूल छोड़ आता हूँ। कितने दिन बीत गए अपने आप से मिले, सूखे दरख्तों में खूबसूरत फूल छोड़ आता हूँ। बन जाऊं शहंशाह इस जहां का तो भी क्या, बन जाऊं शहंशाह इस जहां का तो भी क्या, अपने अंदर का हारा हुआ सिकंदर कहीं छोड़ आता हूँ। अपने अंदर का हारा हुआ सिकंदर कहीं छोड़ आता हूँ। भाग रहा हूँ बस, भाग रहा हूँ बस, क्यों कहाँ किस लिए पता ही नहीं। भाग रहा हूँ बस, क्यों कहाँ किस लिए पता ही नहीं। अपने ही पसीने से अपनी शख्सियत धो आता हूँ। अपने ही पसीने से अपनी शख्सियत धो आता हूँ। पर फिर सोचता हूँ, पर फिर सोचता हूँ, लौट चलूं अपने पूर्वा की ओर। फिर सोचता हूँ कि लौट चलूं अपने पूर्वा की ओर। अपनों के बीच, अपनों के पास, अपनों के बीच, अपनों के पास, अपना बस अपना हो आता हूँ। अपना बस अपना हो आता हूँ। थैंक यू सो मच। Wonderful. Reena ji, you have, like, I don't have any words. So beautiful. Just like a bird going to collect some things for a nest and then building the nest and returning at the evening time to their nest. It's just like that way. Explain. I will ask Ms. Neelam to enhance on this. ये आज जो भागदौड़ है, जितना वो नेक ब्रेकिंग कंपटीशन है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का, जो वर्ड्सवर्थ ने लॉन्ग बैक अपनी पोएम में कहा था, वो बहुत कमाल तरीके से आपने पेश किया है कि मंजिल तो पीछे छोड़ते हैं और आगे किस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद भी हम भूल जाते हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। और इस आपाधापी में जिंदगी की असली खूबसूरती तो मिस हो जाती है। और मुझे ये बहुत अच्छी लाइनें लगी कि मैं अपने आप से भी नाता, मैं अपने आप को भी मतलब पहचान नहीं पाया हूँ, अपने आप को भी पीछे छोड़ आया हूँ। सो गजब की पोएम, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा, बहुत खूबसूरत आपने पेश किया, बहुत मजा आया मुझे इस कविता का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी इस कविता को सुन के कुछ 4 लाइनें हैं मेरी, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मिल जाए कोई ऐसी कलम, ऐसी दवात, ऐसी स्याही कि लिख दूं तुझे अपने मुकद्दर पर और कोई मिटा भी ना पाए। बहुत ही अच्छा रीना जी आपने बोला है। एक मेल के ऊपर जो पोयम है, अब मैं तो सर से ही कमेंट मांगूंगी कि सर इसमें क्या बोलना चाहेंगे, इस पे अपनी क्या राय देना चाहेंगे। तो सर प्लीज वेलकम। एक्चुअली माय पोएम रिप्रेजेंटिंग टू होल ह्यूमन रेस, जो भी क्षेत्र के ओरिजिनल हैप्पीनेस खो रहे हैं उन सभी के लिए, उन सब पे We have no time to stand and stare। और कितनी खूबसूरती है जिंदगी में, कितनी खुशियां हैं और हम इंतजार में है कि खुशी आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। दिखती नहीं है, आंखों खुली आंखों से भी दिखाई नहीं देती खुशी। सूखे दरख्तों में खूबसूरत फूल से मेरा मतलब था सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उसमें हम हमारा खूबसूरत परिवार छोड़ के काम पैसा कमाने के भाग जाते हैं। एक्चुअली रियल हैप्पीनेस उनके साथ भी कुछ गोल्डन टाइम बिताना। वैसे भी जब फूल खिले हैं, मौसम है, हम किसी और चीज के आपाधापी में लगे हैं और वो मुरझा भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सच में कहती हूँ, मेरी लॉन में फूल खिलते हैं और मैं इतनी अपनी व्यस्तता में होती हूँ कि वो मुरझा जाते हैं। मैं देखती, और जब मैं देखती हूँ कभी किसी फूल को, तब लगता है कि ये जिंदगी है, ये खुशी है जिसको हम तो मैडम बेसिकली रियल लाइफ में इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि हमें हमारे हर रिश्ते को वक्त देना जरूरी है। जहां नहीं दिया वो फूल की तरह मुरझा जाएगा। फिर चाहे वो फैमिली हो, पति हो, बच्चे हो, इन लॉज हो, ईच एंड एवरीवन, सब पे नजर होना बहुत जरूरी है।
मैं अगर आप लोग कहें तो मैं एक पोएम सुनाऊं, मेरी इसी पर थी, लाइफ या इज रेस. श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल. मोस्ट वेलकम, वेलकम. Okay, I will just take an opportunity because same meaning का है. Life is race. Everybody is running and I am running too. Many things to chase and I am trying to. In between the race, I heard someone. She told me I never bother who won. I stopped for a while and found her giving me a smile. Inquiringly, I asked, "Who are you?" Abruptly, she replied, "I'm a part of you, whom you have lost. But do you ever realize at what cost?" Now I was confused about what to say. Again, I asked her question, "Where do you stay?" Calmly, she said, "I waited for you every day, but you ignored me, changing your way." She continued, and I found it fascinating. Nothing to say, I was listening. I gave it a thought, and what I found, I'm alone and nobody is around. Then I realized that I have already won the prize. People are still running, but I have already won the race. Thousands of things to chase, but I found myself by His grace. Thank you. मैम एक बात और शेयर करना चाहूंगी. मेरे मेंटर है, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि आप कुछ भी राइटअप करो, चाहे पोएम लिखो या कुछ भी, आप अगर कोई पॉइंट रेज कर रहे हो, कोई इशू रेज कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ योर राइटअप यू शुड गिव द सॉल्यूशन आल्सो. देन ओनली आपका जो राइटिंग है दैट विल बी सक्सेसफुल. तो आप एक सक्सेसफुल राइटर हो, या आपका राइटअप जो है वो सही मायने में सही है. तो मैंने भी अपनी पोएम में जो लास्ट में दिया है कि अपनों के बीच बस अपना हुआ था, तो दैट इज द रियल हैप्पीनेस. अपनों के बीच रहना अपना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. टू फाइंड योर हैप्पीनेस अमंगस्ट योर ओन पीपल. बहुत अच्छे, आपने बहुत आपने अच्छी पोएम सुनाई, और इट वाज रियली अ प्लेजर टू लिसन टू यू. Both the poems equally great, with a message for us all, and uplifting poems. We are engaged in useless activities and missing out on the most important things. So these poems are eye-openers for all of us. Thank you, ma'am. Great. Thank you, ma'am, for your Thank you, ma'am. feedback. Thank you. Okay, Dev, please welcome. Yeah, thank you so much. By the way, myself Dev Gupta. I'm from UP and I'm nothing. मतलब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पर थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ. कुछ भी नहीं करता हूँ. कुछ भी नहीं हूँ, थोड़ा कुछ हूँ. तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, मैं बाय प्रोफेशन एक होस्ट हूँ, एंकर हूँ, इन ऑनलाइन लाइफ इवेंट्स करता हूँ. बाकी छोटे मोटे कुछ परफॉर्मेंसेस करता हूँ, जिससे लोग दिल जीत के अपनी छोटी सी पोट्री में संभाल के रखता हूँ. तो आई होप आप लोग रेडी होंगे मेरा इस छोटे से थोड़े मासूम परफॉर्मेंस के लिए. तो या ठीक है. तो मेरा वॉइस आ रहा है ना? बस ये मेरा फर्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. तो बचपने से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बुढ़ापे पे खत्म करेंगे. पगल ही पगल तो पगल करती जहाँ भी जाए, एक कैसा दीवाना कर देगा सबको. ओ शिनचैन, मेरा नाम ही शिनचैन है. मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी. मेरी फैमिली मुहारा. Come on baby, आओ करे डांस शुरू. सुर सिखो में हम तुम चूमे, नाचो नाचो तो देखो सबको हिला तू. कभी ये उछलता है, कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू.
रोज रोज करता है ये नई नई गड़बड़, सबको हंसाती का शिनचैन। वैसे मेशी जैन हमारा मेरी उम्र 5 साल, वैसे मैं पिछले 20 सालों से 5 साल गई हूँ, पर कोई बात नहीं, चलेगा फूजी। और पता है मेरे पास एक मोटी आत्मा भी है। मेरी उम्र 85 साल अरे मेरे पास तो एक बहुत ही मशहूर अंकल भी है। अंजलि, अंजलि तुम उसको छोड़ दो अंजलि। अंजलि, अंजलि तुम नहीं जा सकती अंजलि। ओए फोड़ दूंगा दुनिया से सब मीने उखाड़ दूंगा। हैंडपंप तो छोटी चीज है। आओ मैं तो हंसता हूँ। आओ। कैसे कैसे हंसता है वो इंसान। फिर अपना थोड़ा सा होस्टिंग वाला स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है हमारे आज की शाम शानदार, जहाँ पर हम पीओस एंड होप कम्युनिटी का एक प्यारा सा इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, प्यारी सी आवाज में अपने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो होप आप लोग का आज मजा आ रहा होगा और मजे के साथ थोड़े से इस इवेंट को जानदार बनाने के लिए आपके परफॉर्मेंस में और एनर्जी भी आ रही होगी। कॉस आज की शाम यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट आने, बहुत ही प्यारे रोमांचक परफॉर्मेंसेस आने, और सब कुछ मैं बताऊंगा या आप लोग बताओगे? होस्ट मैं नहीं हूँ। Okay. So entertaining, Dave. It was so entertaining. So myself, Devta. I'm 20. That was my original composition. आजकल की बातें। तुम सबसे है वो बातें, कैसे रातों की नींद चुराते हो, ख्वाबों की वो है चटनी, मेरे नजरिए में खो जाते हो, नजरों में तुम देखो ना, नजरों को अब मूंद के बातों में जो रहती हो, कह भी दो जो कहना है। आज करती है वो बातें हैं, वो यादें हैं, वो वादे हैं, आज करती है वो बातें हैं, वो रातें हैं, वो ख्वाब हैं। जान जिंदगी में पूछा मैंने क्या कहना है उसका भी, जो कहता था वो अधूरी है, पूरी कर दो ना दिल के भी। आज कल की वो बातें हैं। So anyhow, it was wonderful. The words you were speaking were wonderful. Neelam Prabha ma'am and Achal sir will tell you more about what you have done. Yeah, I can Dave, just you are a bag full of varied talents. You played on the instrument, you did a wonderful anchoring, and then you are a perfect mimic, and you sang so well, and so many things put together, and it was real entertainment. Great, great. Well done. Thank you so much, ma'am. Yeah. Congratulations. At such a young age, you are doing really wonderfully well. के बारे में बढ़ना चाहूँ मैं। So, I wish you a very, very bright future. Thank you so much, ma'am. ये तो लाइक बस आपका एक बार नाम मैं थोड़ा फिर से जानना चाह रहा था। बाय द वे बेसिकली मेरा रियल नेम देवांश है, बट जो मेरा देव है, देव है, ये नेम मेरा स्टेज नेम है, जो कि मैंने लास्ट 5 इयर्स में खुद बनाया है। एंड असली नेम से मैं जाना चाहता हूँ मोस्ट प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म करता हूँ। इतना खूबसूरत आपका नाम है, इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस है। देवों का अंश देवांश, तो बिल्कुल जो साक्षात देव जो है वो आपके अंदर विराजमान है। इतने सारे टैलेंट मैम ने बिल्कुल सही बोला, नीलम प्रभा मैम ने, कि आप पूरा बैग हो पूरा टैलेंट्स को।
मतलब इतने सारे टैलेंट्स आपने एक साथ शो कर दिया। मुझे लग रहा था ये इसी चीज की बस कमी थी कि हम लोग सब अपने वर्ड्स जो हैं एक तरह से बोलो हम लोग अपने सारी फीलिंग्स को तरक रहे थे, लेकिन एक संगीत की कमी थी जो आपने पूरी कर दी देवांश। दैट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से आप मिमिक करते हो, बहुत अच्छे से आवाजें निकालते हो और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। आई बिल्कुल आल्सो विश यू बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। वेरी वेरी और मुझे लगता है कि देवांश के बैग में अभी भी कुछ पड़ा होगा। हाँ मैं मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ ना मैं साथ में, तो वो भी अच्छा है। अरे मुझे लग रहा था कि कुछ है और बचा के रखा हुआ है। So next time we'll have that. नेक्स्ट टाइम। So that was entertainment, entertainment, and entertainment. Yes. So Devansh, you are exactly. Dev, and Dev, you are just entertainment. That's a new name coined to you from today. Entertainment. Okay. Lovely to have you here. So let's move ahead. I would like Amarpreet ji to come up and say something because she has some poem written on introducing her own community and some other new perks and something. So over to you, Amarpreet ji. Okay, thanks for the opportunity again in my hand. Yeah, it's something which I've written few lines about few communities and especially our two communities, Paris Poetry and Hope History Community, on the eve of 4 months and 18 months of celebration. So it is like I've given the title as Journey of the Communities. कम्युनिटीज का दिल में ख्याल आया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। जब से जुड़ी हूँ इस राइटिंग की दुनिया में, ना जाने कितनों से कितनों के जहन में बहुत बार बड़ा सा स्टॉक भरा आया है। पायस पोइट्री से लेकर लिंगविंग राइटर्स गिल्ड तक, होप लिटरेरी कम्युनिटी से लेकर सर्वदा पब्लिकेशंस तक, ना जाने कितने सारे कम्युनिटीज से ग्रुप्स को लेकर लेखकों के नाम दिल में उतर आए हैं। मार्च राइटिंग की कम्युनिटी की दुनिया में जुड़ी एज अ गेस्ट एंट्री हुई। एक्चुअली इन मार्च ना आई कम टू दिस राइटिंग इंडस्ट्री एज अ गेस्ट। ओके, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि मार्च राइटिंग की कम्युनिटीज की दुनिया में जुड़ी एज अ गेस्ट एंट्री हुई, बड़े बड़े कलाकारों से मिली, पार्टिसिपेंट बनी और चुनी भी गई। हमेशा से एंड अभी पार्टिसिपेंट ही हूँ। ना जाने कैसे, कब और कहाँ, क्या खुद की कम्युनिटी स्टार्ट करने का दिल में ख्याल आया। एंड ऑफ अगस्त में होप लिटरेरी कम्युनिटी का एज ए जन्म एवं नामकरण हुआ। मैंने ये नामकरण के नाम दिया है बिकॉज सिंस अगस्त एंड आई स्टार्टेड दिस कम्युनिटी, तो इसका जन्म हुआ। अभाग्य प्रताप सिंह ने और सोनाली ने लोगो बनाया। जल्द ही MSME में से पूरा साथ निभाया। विपिन मैम, अक्षय जी भी बराबर के हकदार में सपोर्ट किए। एंड बस फिर क्या था, पूरा भार अपने सर ले कम्युनिटी को 8 लैंग्वेजेस से आरंभ किया। बहुत कुछ सीखा है मैंने इस दौरान, कई कम्युनिटीज के एडमिन बनकर तो कईयों के को टीम में हिस्सा बनकर। आज तो 4 महीने पूरे हुए इस कम्युनिटी के साथ चलते हुए। आज तो 4 महीने पूरे हुए इस कम्युनिटी के साथ चलते हुए। स्टार एवरग्रीन राइटर्स भी डिक्लेयर हुए, जैसे कि निर्जा मैम, समीर सर, हरीश सर, वी राजकुमार सर। इतने अच्छे राइटर्स जुड़े। अब तो हमारी कम्युनिटी में 2 होस्ट भी बन गए, अमरीन जी एंड नाजिमा जी, जो कि एहसासों का ख्याल हमें हर पल दिलाती हैं और हमारी हिंदी ज्वेलरी भी हैं। होप लिटरेरी कम्युनिटी ने अब तो हर वीक क्विज भी शुरू किया है। 2 मैगजीन भी पब्लिश किए हैं, होप विथ होप नाम से। आगे चलकर देखो ये क्या करती है, कितने राइटर्स के ये सपने पूरे करती हैं। अब कुछ लाइंस पायस पोइट्री के लिए। पायस पोइट्री की तो बात ही निराली है। आयुष खन्ना जी तो उसे बड़ी शिद्दत और हौसले से आगे बढ़ा रहे हैं। 18 मंथ्स की ये ऑलमोस्ट कम्युनिटी हो गई है। ना जाने कितने सब कम्युनिटीज
ये बखूबी अपने अंदर चला रही है। किड्स कॉर्नर से लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट तक, ऑनलाइन ओपन माइक से लेकर ऑफलाइन ओपन माइक तक सक्सेसफुली आगे बढ़ी जा रही है। निकिता जी से लेकर इशिका जी तक और भी कितनों की हेल्प से ये आगे अपना मुकाम राइटिंग की इंडस्ट्री में कायम कर रही है। जिनके नाम नहीं लिए गए हैं उनसे माफी चाहूंगी, उनका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, तो डोंट माइंड और टेक इट अदरवाइज। ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे आप लोगों को बोल रही हूँ। नेक्स्ट इज पोएटिक एसेंस में तो बहुत ही एसेंस है। एंड ऑडियो क्लब हमेशा से ऑडियो की तलाश में है। कड़वे एहसास को तो एहसासों से भरा पाया है। दिल की कलम तक में तो दिलों का सांस उभरते आया है। ये सब राइटर्स कॉस्मोस में तो पूरा कॉस्मोस ही छुपा है। इन सब शब्दों से मैंने कुछ कम्युनिटीज को अपने शब्दों के मालों में पिरोया है। शुक्रिया एंड होप सो आप लोग मेरे कम्युनिटी, होप लिटरेरी कम्युनिटी, पायस पोइट्री एंड बाकी जितनी कम्युनिटीज हैं सबका हौसला अफजाई ऐसे ही करते रहें, पार्ट लेते रहें। शुक्रिया। Very beautifully described the journey of this community. Very well done. बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। शुक्रिया मैम। बहुत अच्छे। अमरप्रीत, this is wonderful. जी अच्छा जी। बहुत सुंदर तुमने लिखा है और लिटरली दैट शोज, अगेन मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम हाईली एबल्ड हो और हमेशा रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू। She is the best amongst us. Oh gosh, nothing like that, ma'am. But I'm in a learning process, I would say, and that also from everybody, each and every participant here, and founder or our guests also at the same time, and hope we meet again each and every of our celebration. Sure, sure. And Neelam Prabha ma'am, I would like to add one more sentence to your compliment to Amarpreet, that she is so best that she is also able to dig out best of the society from among all of us. So she is that much highly able that she can hold a community, she can head a community, she can head a community of a very good people. Extraordinarily. वेलकम संजना। स्वागत है संजना जी। Thank you, ma'am. First of all, congratulations to Hope Literacy Community for completing its 4-month journey, and Pious Poetry also for completing its 18-month journey. Am I audible? Yes, you are. Yes. आज की मेरी रचना एक शेरनी के बारे में है। आज की मेरी रचना के माध्यम से मैं एक शेरनी से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। आज की मेरी रचना का शीर्षक है वह शेरनी है। तो शुरू करते हैं। और शेरनी कौन है वो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा, तो जुड़े रहिएगा। वह शेरनी है, वह दुष्टों के लिए वह काली है। वह अपनों के लिए सौम्य रूप वाली है। वह अपनों की रक्षा के लिए हिम्मत वाली है। उसके साथ दुर्व्यवहार करने वालों की अब जान जानी है। अब उसने शर्त उठाने की ठानी है। अब उसने आत्मरक्षा की ठानी है। अब वो किसी से नहीं डरने वाली है। अब वो सबको सबक सिखाने वाली है। अब खत्म हो चुकी पुरानी कहानी है। अब वो नई कहानी लिखने वाली है। अब वो अपना जीवन अपने ढंग से जीने वाली है। अब वो किसी के सामने नहीं झुकने वाली है। वो गलत का डट कर सामना करने वाली है। वो अपनों के लिए अन्नपूर्णा माई है। वो दुष्टों
को सजा देने वाली है, अब वो दुष्टों को सजा देने वाली है, अब वो दुष्टों को माफ नहीं करने वाली है, वो रूप नया लेने वाली है, वो रूप नया लेने वाली है। उसने दुष्टों को अपने गुस्से की आग में जलाने की ठानी है। भूलना मत, भूलना मत, वो आज की नारी है, भूलना मत, वो आज की नारी है। धन्यवाद। So beautiful, very nice. But Very nice poem, Sanjana, of a modern woman. Very brilliant picture of a modern woman. That's great. Very inspiring and encouraging. थैंक यू मैम। और सचमुच में मॉडर्न वुमन जो है वो शेरनी, उसका गुजारा ही शेरनी बन के है। अदरवाइज इतना अत्याचार है यहाँ चारों तरफ, भेड़िए हैं चारों तरफ, व्यभिचारी हैं चारों तरफ, सो उसका शेरनी बनकर ही गुजारा है। बहुत अच्छी पोएम। बहुत अच्छा संजना, आपने बहुत अच्छा लिखा है और ऐसे ही खुद को हम सबको बनाना है। हमें अपने घर परिवार के जो बच्चे लोग हैं उनको भी इसी तरह से ढालना है। ये बहुत जरूरी है आज की सोसाइटी में। तो नीलम प्रभा ने बिल्कुल सही बोला है। जिस तरह का एनवायरनमेंट है अभी आस पास हम सभी के, उसमें आपकी जो कविता है बहुत फिट बैठती है। बहुत सही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स। it was lovely and wonderful poem indeed. Okay, let's move ahead, and I can see Miss Vipin Kamble ma'am is also there. So I will just introduce her. She is also a founder, Poetic Essence publication and Poetic Essence community. So let me call her upon. Poetic Essence publication, a name synonym with a rich legacy of over 2 decades in writing, with a particular focus on academic projects. Hailing from bustling city of Mumbai, she has seamlessly woven her writing powers with her profession as an environmental sustainability professional. Her collaboration extend to more than 100 anthologies, where her words resonate alongside other creative voices. Her role as compiling books speaks to her dedication to curating narratives. Delving deeper into her literary journey, Vipin's solo book, Unprecedented Voice, proudly showcases her distinctive perspective. Her contributions have earned her recognition, including the esteemed title, The Best Poetry Writer of the Year 2022, awarded by the Publication Council of India, and the honor of Best Budding Writer 2022 and 2023, bestowed by the Literary Clan Awards. A visionary in her own right, Vipin V. Kamble is also the driving force behind Poetic Essence publication, a platform that nurtures the creative voices of emerging writers. Her writing delves into multifaceted themes, ranging from love and life to poignant exploration of social issues. Vipin's literary journey is marked not just by volume of her work, but by the depth of her insights and the impact of her words. She is shining example of writer turned author. Most welcome, Vipin ma'am. What you would love to say something? Good evening, everyone, and apologies for being late. And heartiest congratulations, Amarpreet ma'am and Ayush, for this wonderful journey. And else you have welcome, Vipin ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Myself, Vipin Kamble. मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरे मैं की पहचान, जिसमें मैं का फायदा, मैं का ही नुकसान, मैं का बढ़ता मान देखकर मैं की जलती जान, सारा खेल है मैं का, इसमें बसती हम सबकी जान, तेरे मैं से मेरा मैं और मेरे मैं से तेरा मैं, किसमें किसका कितना योगदान, इसी उहापोह में उलझी हम सबकी जान, बाहरी आडंबर में झूठा फंसा मैं, फिर ढूंढता फिरूं बस मैं अपनी पहचान,
मैं के फायदे नुकसान के गणित में, जीवन जीने के सही तरीके भूल गया मैं। सोचता हूँ निकल पड़ूं इस मैं को छोड़कर उस मैं को खोजने, जिसमें मिलेगा मुझे सही अर्थों में अपने जीवन में मैं के होने का सही ज्ञान। थैंक यू सो मच। मैडम बहुत ये ही लाइन खूबसूरत। बहुत, आपने बहुत हार्ट टचिंग लाइंस यूज किया है। इस मैं को छोड़कर उस मैं की जो तलाश है वो बहुत जरूरी है और हम सबके लिए जरूरी है। अगर इस समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो इस मैं को हम सबको छोड़ना होगा और उस छोड़ना मैं की पड़ेगा। तलाश करनी। बिल्कुल। सैल्यूट मैम, बहुत आपने सही बात की। विपिन मैम, आपने मैं पे जो पोएम लिखी है उसमें मैंने बहुत पहले एक 2 लाइन का थॉट लिखा था, वो थॉट आप सबसे शेयर करूंगी। तो मैं मतलब मैं यानी गुरूर। तो जब इंसान अपने मैं में कैद हो जाता है, जब इंसान अपने मैं में यानी गुरूर में अपने मैं में कैद हो जाता है, तो सारे रिश्ते उससे जुदाई की दुहाई मांगते हैं। तो आपने मैं को बहुत ही खूबसूरत बढ़िया। डिफाइन किया है। थैंक यू मैम। जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल पोएम। देखिए कितना कितना अच्छा इत्तेफाक बना है कि विपिन मैम ने कहा कि इस मैं को छोड़कर उस मैं की तलाश में, और आपने जो है उस मैं को ही कैद कर लिया। क्या बात है मैम, एक तलाश में है और एक कैद में थैंक है। यू सर, थैंक यू सो एक मच। कैद में है। मैं अपने गुरूर को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है। मतलब इंसान में जब गुरूर वाला मैं आ जाता है ना, तो फिर सारे रिश्ते उससे जुदाई की दुहाई ही मांगेंगे। कौन उस मैं के साथ कैद रहना चाहेगा? तो विपिन मैडम के मैं का वही अलग ही विपिन अंदाज था। विपिन विपिन वही मैं आपको बोल रहा था। जी। शायद मैं अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि विपिन नहीं मैम नहीं ने सर। जो मैं को छोड़ा है उसी मैं को आपने कैद कर लिया है। तो इससे बड़ा और क्या भी होता है। जी जी, थैंक यू सो मच विपिन मैम। Yeah, and one more thing is for Yes. all the females sitting there, and it is from his side to all of us, for the females in the life, in the family, everywhere. The title of the poetry is She is not holding the half sky. She is the ocean. She is the moon. She is the powerful goddess. She is a wife. She is the mother. People feel she holds half of the sky, but I feel she is the whole sky. She is the one who made my life. I was living a half life. With her, I completed my life. She is holding the half sky, spreading the colors all over wide. Thank you so much. Beautiful, very nice. And the truth of life, this is the truth of life. She is holding the whole sky, not half of it. Beautiful. ब्यूटीफुल। इतने कम शब्दों में विपिन इतना मैम, खूबसूरत शी को डिफाइन करना, ब्यूटीफुल विपिन मैम, एज ऑलवेज। Yes, as always is so true. As She's always. always good. Okay, let's move ahead, Nazima Thank ji. you, Vipiन. Thank you so much. Minisha is a homemaker, currently pursuing her all-time favorite hobby of writing. She is used to write poems for her school books and an article for her college book too. She loves to write essential day-to-day happenings with a twist to make it attractive for the reader. And she's coming through our favorite Hope Literary Writing community. So over to you, Minisha. Thank you. I will say 2 poems, one in Hindi and one in English. English is Light. The light reflects hope and happiness. There is a saying, Tamsoma Jyotirgamai. From darkness to brightness. From illiteracy to education. My poem is,
I was big enough to make my decisions, but still my parents used to think that I am immature and full of confusion. So one day I had a fight with my mom, and it was so that I left my home. Later during the day, I felt guilty, and so I sent a message to my mom that I am sorry. And I, sorry, ma'am. It's okay. Continue. What happened? Then I wrote a message that if you are not angry, then let the corridor. Then I think that you have forgiven me, or else I'll have to stay outdoors. At night, when I reached, I saw that not only the corridor was lit, but the whole house was glowing with the light. It shows how much they loved me, and this had the impact on my heart forever. Thank you. You're welcome. Beautifully said. I wanted to show that light, the way light takes us from darkness to brightness. That way, the feelings also reflect light in our life. And my other poem is Anubhav. It's in Hindi. एक माँ होना एक अद्भुत अनुभव है जो वो मुश्किल 9 महीने भी भुला देती है। जब नवजीव को देखते हैं तो उसका मन उत्साहित हो जाता है और उसे उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। जब वो अपनी नई जिम्मेदारी को अपनाती है तब वो एक साथ कितने किरदार निभाती है। एक माँ तब एक बेटी, बहू, बहन, बीवी सब कुछ बनकर दिखाती है और हमें एक अनोखा एहसास देती है। हम ये सोचकर हैरान हैं, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत वो कहाँ से लाती है। माँ सब कुछ हंसी खुशी कर लेती है। भगवान आपका शुक्रगुजार है कि आपने एक औरत को माँ बनाया और हमें एक अविश्वसनीय अनुभव कराया। थैंक यू। सच में माँ भगवान का रूप होती है और इसीलिए भगवान ने माँ को भेजा है कि वो हर जगह नहीं हो सकता, माँ होती है हर बच्चे के लिए। ब्यूटीफुल पोएम, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल पोएम, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। माँ को इतना खूबसूरत डिस्क्राइब करना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। माँ को तो वर्ड्स की नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपने बोला वो बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है माँ को। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।